मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे एंड मस्ट बी वेरी वेरी प्रोएक्टिवली preparing for your exams. So welcome back to your own channel, Study with Alka Khandwal. Those who are new to the channel, are coming first time to the channel, please go and check out the videos which has been already uploaded, and you will understand that what is the logic, what is the motto behind the channel. तो जो मेन मोटो है, दैट इज हेल्पिंग आउट द candidates who all have applied for the post of PGT Computer Science and TGT Computer Science. So we will cover all the syllabus. पूरा जो syllabus है, जो उसके लिए स्पेसिफाइड है, वो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट and computer as the subject for all the competitive exams we are taking. आजकल हमको पता है computer is a mandatory section in all the competitive exams. So we know the importance of half 0.25 marks in all the competitive exams. So we cannot just leave that section. ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैथ्स कर ली, रीजनिंग कर ली, इंग्लिश कर लिया, हमने कंप्यूटर को छोड़ दिया, बिकॉज द लेवल इज इंक्रीजिंग. सो अगर आप इस चैनल में जुड़ रहे हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है फॉर योर प्रिपरेशन, along with the explanation that why this is the answer to this question. तो आपको एक clarity आ जाएगी and you will be very confident in attempting your computer section. So अगर अभी आप जुड़े नहीं हैं तो जरूर आप जुड़ जाइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि I also feel lot of motivation and I will also come out with new sessions and you all will be benefited with it. So today I am taking the topic cube and cube root. We have already done square and square roots. Today the topic of the day is cube and cube root. So let us start with the session today. So that is a very interesting and also easy topic which we will be covering today. So we know what are square and square roots. Now today we will be discussing about cube and cube roots. Yes. So let us get started. And if you have not yet subscribed, and click on the bell icon as well, so that as soon as the new video is uploaded, तुरंत आपको notification मिल जाए. तो जब हम लोग क्यूब की बात करते हैं, डू यू रिमेम्बर वी वर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ द नंबर, दैट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद इटसेल्फ टू टाइम्स, दैट इज स्क्वायर ऑफ द नंबर. वैसे ही अगर हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स विद इटसेल्फ, इट इज नोन एज द क्यूब ऑफ द नंबर. फॉर एग्जांपल आई से 1 क्यूब. व्हाट डज दैट मीन? 1 into 1 into 1. मतलब एक नंबर को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 क्यूब, व्हाट डज दैट मीन? 2 into 2 into 2, that is 8. तो जब हम एक नंबर को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्यूब ऑफ द नंबर मिलता है. 3 क्यूब. And it is always a good idea to remember the cube of the number from 1 to 10. Yes. अब आपको पता चलेगा कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी आगे पता चलेगा. So 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125. Yes. 6 cube is 216. 7 cube is 343. 8 क्यूब है हमारा 512. 9 क्यूब है हमारा 729. And 10 cube is 1000. Yes. So now let us do some observation. You know na, in square also we did some observation कि कभी भी जो perfect square होगा वो 2, 3, 7, 8 से end नहीं होगा. वो हमने perfect square के समय में हमने एक observation की थी. अब let us see what is the observation we will do in the cubes of the number. So what is the thing we are observing? जब भी एक odd number है, जब हम उसका क्यूब कर रहे हैं तो वो भी odd number आ रहा है. जब ये odd number है तो उसका क्यूब करने से odd number आ रहा है. Take any odd number, the cube of that number is odd only. Similarly, take the even numbers and the cube of the even numbers are also even. So एक observation ये हो गई that cube of the even numbers will always be even, cube of the odd numbers will be always odd. So that is the number 1 observation. Find cube of odd numbers
odd numbers are odd and cubes of even numbers are even. Yes, so that is the observation we have done. Now let us see for the next observation. Yes, that is the number one observation we have done. अब हम लोग एक और observation करते हैं. जब हमने 1 का क्यूब किया, so what did we observe in the unit digit? 1 cube, 1 is there in the unit digit. 4 cube, 4 in the unit digit. 5 cube, 5 in the unit digit. 6 cube, 6 in the unit digit. 9 cube, 9 in the unit digit. 10 cube, तो यहाँ 0 है, तो unit digit में भी 0 है. This is the observation. अब मुझे लग रहा है, I am observing that 2 and 8 are best friends and 3 and 7 are best friends. Now why do I say that? क्यों मुझे लग रहा है कि वो बेस्ट फ्रेंड है? क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट में 8 आया, और जब हमने 8 क्यूब किया तो यूनिट डिजिट में 2 आया. अब हमने जब 3 क्यूब किया तो यूनिट डिजिट में 7 आया, and when we did 7 cube the unit digit comes out to be 3. तो इंटरचेंज हो रहा है, 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3. So that is why apart from this, इन चारों को छोड़कर सबके यूनिट डिजिट में सेम नंबर आए. तो जब हमको ये चीज याद रखना है कि जब 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आएगा यूनिट डिजिट में, 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा, 3 करेंगे तो 7 in the unit digit, 7 cube then 3 in the unit digit. So this is the basic observation. Very easy observations. Now let us move ahead. अब ये हमको एक ब्रीफ आइडिया हो गया क्यूब एंड क्यूब नंबर्स का. अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें जनरली children they face problem in doing that. So there is one property that cube numbers can be expressed as sum of consecutive odd numbers. तो ये एक प्रॉपर्टी है consecutive odd numbers. मगर अगर हमको कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैंने लिखा 4 क्यूब, and then how do I know कि what are those numbers which add up and that give us 4 cube? तो अगर मैंने आप लोगों को बोला कि वो नंबर्स ये हैं, सब आपको लगेगा कि मैंने कैसे निकाल लिया कि 13 plus 15 plus 17 and 19 will give you 4 cube. So that there is a trick behind it. हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि जो भी नंबर है जिसका भी क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल 5 क्यूब है, तो पहले आप 5 ब्लैंक्स बना दीजिए. 1 2 3 4 5. We will make 5 blanks. Now we will try to find the middle value. So इसका मिडल वैल्यू क्या है? ये है इसका मिडल वैल्यू. यस, तो मिडल वैल्यू कैसे आएगा? तो ये 5 क्यूब है, तो जस्ट टेक द नंबर 5 एंड डू द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. एंड 5 स्क्वायर इज 25 एंड 25 इज अ ऑड नंबर, तो उसको बीच में हमने यहाँ पे लिख दिया. बीच में ऐसे लिखा कि 2 ब्लैंक्स आगे है, 2 ब्लैंक पीछे है. ओके, एग्जैक्टली इन द बिटवीन यू हैव टू पुट. हमने 25 डाल दिया. 25 के बाद, क्योंकि इट इज एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 25 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 27. 27 के बाद कितना ऑड नंबर आता है? 29. 25 से पहले 23. 23 से पहले 21. So 5 cube can be expressed as 21 plus 23 plus 25 plus 27 plus 29. Now let us do for one even number. जैसे 6 क्यूब है तो हम पहले 6 ब्लैंक बना देते हैं. 1 2 3 4 5 and 6. 6 blanks are there. Fine. अब इनके जब भी इवन होगा तो 2 मिडल वैल्यू आएगा. अभी बताती हूँ. जैसे कि 6 स्क्वायर किया तो हमारा आंसर क्या आया? 36. मगर 36 तो हमारा इवन नंबर है, बट वी हैव टू एक्सप्रेस इट एज द ऑड नंबर. तो हम 36 से एक नंबर पहले ले लेते हैं और एक नंबर बाद ले लेते हैं. फाइन. अब हमारे पास 2 मिडल वैल्यूज है, वो हम लोग बीच में प्लेस कर देंगे. मिडल वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये 35 एंड 37. सी, इसके आगे भी 2 ब्लैंक है, इसके पीछे भी 2 ब्लैंक्स हैं. सो 37 के बाद आएगा 39,
यहाँ पे आएगा 41, यहाँ पे आएगा 33 और यहाँ पे आएगा 31. सो दैट इज द आंसर. डज इट मेक सेंस? तो आप लोगों को इतना इजी है ये कि जितना जो भी नंबर होगा उतना ब्लैंक्स बना देंगे. एंड मिडल वैल्यू हाउ विल यू ट्राई टू फाइंड आउट? जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए. अगर ऑड आया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बीच में रख देंगे. अगर इवन आया so we will take one value below and one value after that, and then this is the way we express. Fine. Now like we did in the square and square root, तो जब हम स्क्वायर रूट कर रहे थे तो हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था. डू यू रिमेम्बर? अगर नहीं देखा है तो पहले आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर भी देख लीजिए, उसके बाद इट इज ऑलरेडी अपलोडेड. Now in the cube root we are having the prime factorization. अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अब जैसे वहां पे स्क्वायर रूट निकालते समय हम लोग टू पेयर्स बनाते थे, यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे ऑफ द सेम एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216. क्यूब रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. फाइन. तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 1s are 2, 0, 2 8 is 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So 216, how can we write it as? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 into 3 into 3. Yes. And see, अब हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे. ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है. अब जब हमको क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग ट्रिपलेट के बदले में एक ही, जैसे ये इसके बदले एक ही बार 2 लिखेंगे, इसके बदले एक ही बार 3 लिखेंगे. तो बस क्यूब रूट ऑफ 216 क्या है हमारा? 6. That is the answer. We make the triplets and then we get the answer. Sometimes in the question it is asked कि इस पर्टिकुलर नंबर से हमको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो अगर हमारा जो वो ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है तो वी हैव टू ट्राई टू कंप्लीट द ट्रिपलेट. डज इट मेक सेंस? अगर मैंने आप लोगों को बोला 2 into 2 into 2 into 3 into 3, अब what is the number we should multiply it with to make it a perfect cube? This is a triplet, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर ये एक ट्रिपलेट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना है? We need to be multiplying it with 3. So 3 is the smallest number by which we multiply this so that it becomes a perfect cube. Yes. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी. अब आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि सारे क्यूब्स याद कर लो आप लोग. जैसे 1 क्यूब 1 है, 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27 है. क्यों बोला उसका अब मैं बताती हूँ कि जब बहुत बड़ा नंबर होगा एंड वी नो दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है. 5 क्यूब 125 है. लेट अस फर्स्ट राइट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000. अब देखिए, अब एक बहुत बड़ा नंबर है. ओके. एंड वी डू नॉट, वी हैव बीन आस्क्ड कि इसका क्यूब रूट निकालो. तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी टास्क हो जाएगा. अगर हम इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके वी कैन यूज द एस्टिमेशन मेथड और 2 सेकेंड्स में हमारा आंसर आ जाए. सो व्हाट अबाउट दैट? सो फॉर एग्जांपल आई टेल यू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576. ओके. अब हमको इसको 2 सेकेंड्स में हमको ये आ जाएगा. नाउ जस्ट सी 17576. अब आप लोग बनाएंगे ट्रिपलेट फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड. मतलब ये है एक ट्रिपलेट. अब क्योंकि इधर तो बस 2 ही डिजिट है तो ये एक पेयर बन जाएगा. अब जो इसका सेकेंड पार्ट है ये हमको आंसर का यूनिट डिजिट बताएगा. अब आपको याद है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सबका क्यूब जब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट इज द सेम एक्सेप्ट फॉर 2 3 7 and 8. यस. तो यहाँ पे क्या है? 6. तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 6 होगा. ओके. यहाँ सेम है ना, तो इसलिए 6 होगा. The result आंसर का यूनिट डिजिट 6 है. Now we will see this 17. 17 is lying between which numbers? 17 is lying between 2 cube or 3 cube. Is it not?
8 और 27 के बीच में 17 आ रहा है, तो जो ये पहला नंबर है उसको हम यहाँ लिख देंगे. So the cube root of 17576 is 26. That is the answer. Yes, let us take one more example. Then it will be more clear. तो एक बड़ा नंबर ले रहे हैं 140608. अब देखिए ट्रिपलेट बनाइए फ्रॉम द राइट साइड, 3 एलिमेंट्स का. अब बताओ, सम ऑफ यू ऑलरेडी माइट हैव गॉट द आंसर. 8 यहाँ पे 8 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा? मैंने क्या बोला था? 2 और 8 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ 8 है, तो यूनिट डिजिट में आंसर होगा 2. 140 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? इट इज बिटवीन 5 क्यूब एंड 6 क्यूब, तो हमारा आंसर आ जाएगा 52. द क्यूब रूट ऑफ 140608 इज 52. Yes, last example we will take 238 328. Again, ये एक ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट, द यूनिट डिजिट में तो 2 रहेगा. 238 किसके बीच में आ रहा है? 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में, तो इसका आंसर 62 हो गया. Yes, so take some numbers, कुछ क्यूब्स रखिए अपने पास, उसके बाद ये मेथड यूज कीजिए एंड एंजॉय. ओके, फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी आ गया एंड वी आर नॉट, अगर क्वेश्चन में आए कि यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू डू इट, तब तो वो करना ही पड़ेगा. अगर एमसीक्यूज में आया कि इसका क्यूब रूट निकालो, तो वी विल नॉट बी वेस्टिंग द टाइम. Yes, we will not be wasting the time to do the prime factorization forming the triplet. We will use this method and we are good to go. Yes, so those who have not yet liked, shared and subscribed, make sure you are subscribing to the channel, and we will meet again soon with very interesting concept. We will be taking soon some MCQs on Python and some if else logic in Python. So be ready for it and stay tuned. Let's hope that we meet again soon. Till then, take care. Have a great day ahead.